nephron. Okay, I will do in this color. So this is the nephron which is present here. This nephron is going like this, and it will be end here. Clear है? And और भी nephrons होते हैं बहुत सारे, एक यहाँ बना देते हैं. So here we have one more nephron. This is the nephron number 2. It will be end here. Now these are the two types of nephron. The first type of nephron, which is known as cortical nephron. Your answer should be when renal corpuscle completely present in the cortex part. जो renal corpuscle part है वो किसमें present होता है? Cortex. ये cortex से बाहर वाला. सब ये आपका जो Bowman's cup और जो renal glomerulus है वो आपका cortex part में है, तो उस nephron को हम क्या बोलते हैं? Cortical nephron. What is cortical nephron? When the whole filtration part of the nephron present in our cortex. This is known as cortical nephron. याद रहेगा? But in this type of nephron, it is not present in medulla. It is near to medulla. That's why it is known as juxtamedullary. Juxta means again near. So this is the medulla, and it is present just near to the medulla. So when the filtration part is present near to the medulla, it is known as juxtamedullary nephron. So this is the first thing जो इनमें दोनों में difference होता है. One is juxtamedullary nephron. Second one is the cortical nephron. Cortical nephron. Clear है पहला part? उसके अलावा क्या difference दिख रहा है दोनों में? What the other difference is there? लेंथ की बात करें जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आप देखोगे तो इस नेफ्रॉन के अंदर और इसमें एक मैंने देखा, इसमें शॉर्ट बनाया और इसमें क्या बनाया मैंने? लॉन्ग बनाया. सो इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन वी हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले. यहाँ पे क्या रहेगा? लेंथ जो है वो क्या रहेगी इसकी? शॉर्ट रहेगी. इसके अंदर क्या रहता है? शॉर्ट लूप ऑफ हेनले. बट अगर हम इसमें बात करें तो इसका लूप ऑफ हेनले क्या रहेगा? लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. उसका भी रीजन है क्योंकि हमें इसमें क्या करना है? हाइपर ऑस्मोलिटी मेंटेन करनी है पूरी किडनी में, और उसके लिए आपको लॉन्ग लूप ऑफ हेनले चाहिए होगा. क्यों चाहिए वो मैं आगे बढ़ाऊंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा. दिस इज द सेकंड डिफरेंस. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनके नंबर की बात करें तो ये होते हैं आपके नियर बाई 80 to 85%. कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो प्राइमरी नेफ्रॉन है जिनका काम है यूरिन फॉर्मेशन करना. तो ये 80 to 85% होते हैं और क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन आपका करवाते हैं. क्वेश्चन आए यूरिन फॉर्मेशन कौन से टाइप का नेफ्रॉन, तो आंसर होगा कॉर्टिकल. इसकी बात करें तो ये होते हैं नियर बाई 15 to 20%. एंड इनका वर्क क्या है? मेंटेन मेडुलरी हाइपरऑस्मोलिटी. हाइपरऑस्मोलारिटी. नेक्स्ट, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन renal capillary is present as a peritubular capillary. इसमें क्या होगा? Peritubular capillary अभी बताई थी मैंने. But in this type of nephron, tubules is present as a vasa recta. तो vasa recta कौन से टाइप के नेफ्रॉन में? juxtamedullary नेफ्रॉन में. peritubular capillaries cortical नेफ्रॉन में. Don't worry, मैं इधर लिखता हूँ. हटा दें इसको, यहाँ लिखते हैं. So cortical nephron नहीं लिखना है? चलो लिखो फिर, ये लिखो. लिखो. So this is the end of nephron structure. Next, we have a very important system which is known as RAS system or the renal renin angiotensin aldosterone system. renal system part word upload हो या क्या? कौन पूछ रहा है? ये लिख लिया? So there are two types of nephron. The first one is cortical nephron, second one is juxtamedullary nephron. Cortical nephron means the filtration part is completely present in cortex part, but in juxtamedullary nephron the filtration part of the Bowman's cups and glomerulus or renal corpuscles present near to the medulla. That is known as juxtamedullary nephron. दोनों के अंदर नंबर याद रखना है. मोस्ट कॉमन जो आपको मिलेंगे वो रहेंगे cortical nephron, और आपके juxtamedullary nephron नियर बाई 15 to 20% आपको मिलेंगे. फंक्शन याद रखना है. मेडुलरी नेफ्रॉन का मेन काम है juxtamedullary का ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना, हाइपर ऑस्मोलिटी, और जो cortical nephron है उनका काम है यूरिन फॉर्मेशन करना. दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. नेक्स्ट सिस्टम लिखें आप, रास सिस्टम और रेनल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. किस किस को पता है इसके बारे में? रास सिस्टम आता है सबको? सबको रास आता है नहीं आता है? अगर नहीं आता है रास तो अभी बना देते हैं आपको. लिख लिया? एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. सो ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम को कंडक्ट करता है, एक साथ लेके चलता है.
लाइक प्राइमरली किडनी यूरिनरी सिस्टम का तो पार्ट है ही, उसके साथ साथ में ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी यूज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यूज करता है, आपके नर्वस सिस्टम को भी यूज करता है, बहुत सारे सिस्टम है इसको, लिवर को भी, जीआईटी सिस्टम को भी यूज करता है। तो वो सारा कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे हम आपका वास्कुलर सिस्टम को भी यूज करेगा, तो उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे समझेंगे। सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ये रास सिस्टम बॉडी के अंदर कब स्टार्ट होता है, व्हेन इट्स स्टिमुलेटेड, ये हम समझेंगे। ये स्टिमुलेट होने के बाद में क्या होता है वो हम समझेंगे, और जो भी होता है वो कैसे होता है वो भी आना चाहिए आपको, वो भी समझेंगे, और जो कुछ हो रहा है उससे आगे जाके क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो सारा डिटेल में हम स्टार्ट करें इसके बारे में समझना। सो देखो भाई, पहले मैं बनाता हूँ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका पता होना चाहिए, तो वो सारा डिटेल में हम स्टार्ट करें इसके बारे में समझना। सो देखो भाई, पहले मैं बनाता हूँ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका ब्यूटीफुल सा सर, ये इसमें ऐसे घूमता रहेगा। यहाँ से क्या है आपकी ये रिनल आर्टरी, जो ब्लड किसके पास लेके जा रही है, हमारे ब्यूटीफुल सी किडनी के पास। अब होगा क्या, इस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटी हो गया, और एक्सीडेंट की वजह से इसके किसी वेसल्स में इंजरी हो गई और इस पर्सन को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। यहाँ से क्या हो गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। जब ब्लीडिंग होगा तो ब्लड का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज बॉडी में, हाइपर वॉल्यूम, ये क्या हो गया, ब्लीडिंग, हेमरेज हो रहा है। अब इसको बनाना नहीं है, इसको सिर्फ देखना है, ये समझने के लिए, ऐसे ही कुछ नहीं है ये तो, मैं अभी बनाऊंगा बहुत सारी अच्छी चीजें, ये रहने दो इसको। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होने से बॉडी में क्या हो गया, हाइपोवोलेमिया। नाउ जब हाइपोवोलेमिया होगा, हमने पढ़ा था आउट ऑफ टोटल 5 लीटर जो कार्डियक आउटपुट होता है, इसमें से 20 टू 25% किसको सप्लाई होता है, किडनी को, रिनल आर्टरी के थ्रू किडनी को पढ़ाया था। जब ये वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो जो 20 टू 25% ब्लड आ रहा है, जैसे 5 लीटर था उसकी जगह 4 लीटर ही रह गया, 1 लीटर ब्लड लॉस हो गया, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो द अमाउंट विल रीच टू द किडनी विल बी डिक्रीज, और जो किडनी के पास ब्लड आ रहा है वो कम होने से इसको बोलते हैं रिनल परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई को हम क्या बोल रहे हैं, रिनल परफ्यूजन। तो किडनी का परफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीज। जब किडनी का परफ्यूजन कम हो जाएगा, रिनल परफ्यूजन डिक्रीज होगा, तो किडनी पता नहीं कुछ तो करती है, और ये कुछ करके क्या करती है, कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस कराती है जिसको हम बोलते हैं रेनिन, और ये रेनिन यहाँ से इसमें जाता है, और इसमें जाके पता नहीं क्या करता है, और उसके कुछ करने की वजह से जो बीपी फॉल हुआ था, हाइपोटेंशन हाइपोवोलेमिया हुआ था, वो बीपी वापस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो बस हमें यही समझना है, पहला पॉइंट की रेनिन जो रास सिस्टम है वो कब स्टिमुलेट होता है, तो बॉडी के अंदर जब भी रिनल परफ्यूजन क्या होगा, रिड्यूस होगा, अल्टर होगा, तब आपका रास सिस्टम स्टिमुलेट होगा। अब रिनल परफ्यूजन रिड्यूस होने के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लाइक हाइपोवोलेमिया है उससे हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी है उससे हो सकता है, ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज, इंटरनल हेमरेज, एक्सटर्नल हेमरेज, कोई भी रीजन है उन सब से क्या हो सकता है, वेसोडायलेशन हो गया, सडनली बीपी कम फॉल हो गया, तो वहां पे हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कब स्टिमुलेट होता है, जब किडनी परफ्यूजन क्या होता है, कम हो जाता है। जब ये स्टिमुलेट होता है तो उससे क्या रिलीज होता है, ये वाला आर वाला, ये आर है रेनिन, ये क्या है, रेनिन। सो इस सिस्टम के अंदर हमारा जो पार्ट ए होगा वो हम ये पढ़ेंगे कि हाउ रेनिन इज प्रोड्यूस्ड, रेनिन का रिलीज जो है वो कैसे होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रेनिन रिलीज किया जाता है, पहला पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि रेनिन यहाँ पे पहुंच गया, ब्लड में आ गया, ब्लड में आने के बाद रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन क्या करता है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ रेनिन इनसाइड आवर सर्कुलेटरी सिस्टम और वेरियस बॉडी सिस्टम। तो दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे रेनिन रिलीज, दूसरा रेनिन फंक्शन या फिजियोलॉजी कैसे ये वर्क करता है। तो स्टार्ट करें, इसमें तो कुछ लिखा नहीं होगा, इसमें लिखा है तो मुझे लिखना जरूरत नहीं होगी, ये तो खाली है, कुछ नहीं लिखा है सब है। आप लोगों ने ये तो लिख लिया, और ये तो वापस नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। 120। सो स्टार्ट करते हैं रास सिस्टम, और रास सिस्टम में हम पार्ट ए, आप ए लिखेंगे, रास सिस्टम का नाम तो लिख दिया ना ऊपर, तो लिख दो, रहे आप लोग वापस लिख दो, कंफ्यूज हो गए नहीं तो। रास सिस्टम, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट क्या हो गया, कब स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट व्हेन renal perfusion is decrease, stimulation lead to, इसके स्टिमुलेट होने से क्या होगा, स्टिमुलेशन लीड टू रिलीज ऑफ रेनिन। सो अब हमारा पहला पॉइंट यही है कि रेनिन कैसे रिलीज होता है, कौन बताएगा अब? हमारा पहला पॉइंट यही है कि रेनिन कैसे रिलीज होता है, कौन बताएगा अब? रेनिन। सो अब हमारा पहला पॉइंट यही है कि रेनिन कैसे रिलीज होता है, कौन बताएगा अब? सो पार्ट ए, रेनिन प्रोडक्शन और रिलीज। सो इन आवर किडनी विद द हेल्प ऑफ थ्री मैकेनिज्म, तीन मैकेनिज्म है जो क्या कराता है, रेनिन का प्रोडक्शन कराता है, वन बाय वन तीनों की बात करेंगे। यहां तक लिख लिया,
लिख लिया हो तो अपनी कलम को नीचे रख दो, उसको शांति दे दो, थोड़ी रेस्ट करने दो उसको, समझ लो रेनिन रिलीज। तो फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेफ्रॉन चाहिए होगा, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। सो ये फिर से आपका नेफ्रॉन बना देते हैं। अब तो आई थिंक आप लोग सीखे होंगे, एक नजर में नेफ्रॉन बन जाना चाहिए है। हाँ नजर में ही बनाना है, आप लोगों को कौन सा रियल में निकाल के देना है। चलो ये बन गया, और इसमें हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी आपकी एफरेंट आर्टेरियोल्स। हियर वी एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड दिस इज एन इफरेंट arterioles, efferent arteries. These are the specialized cells which is known as Parkinson cells, and these are the macula densa type of cells. Clear? JG apparatus. Now हमने यहाँ पे पढ़ा कि पेशेंट इज सफरिंग विद एक्सीडेंट कंडीशन है और उससे हाइपोवोलेमिया हो रखा है। सो व्हेन पर्सन इज हैविंग हाइपोवोलेमिया, नाउ द ब्लड व्हिच इज रीच हियर दैट विल रिड्यूस और इंक्रीज। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगी, जो ब्लड इधर आएगा, वो अमाउंट क्या रहेगा, इधर जो भी ब्लड यहाँ आएगा इधर, वो क्या रहेगा, लो रहेगा। सो ड्यू टू द हाइपोवोलेमिया, जो ब्लड इस किडनी के पास सप्लाई हो रहा है उसका अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज। व्हेन ब्लड जो यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट है हाइपोवोलेमिया की वजह से, तो इस वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कम होगा, द प्रेशर व्हिच इज प्रेजेंट और दिस afferent arteriole will be less, and we know that this special type of cell which is known as Parkinson cell, this is known as Parkinson cell, and this Parkinson cell is having which type of receptor, baroreceptor. So the baroreceptor constantly checking the pressure in this vessel, in afferent arterioles, and when pressure is reduced, कम प्रेशर, इनको क्या फील होगा कि प्रेशर कम है, बीपी कम फील होगा क्योंकि पीछे से ब्लड क्या आ रहा है, कम आ रहा है। When the sense low pressure, or when the Parkinson cell or the baroreceptor sense the low pressure, baroreceptor stimulate the receptor of Parkinson cell which produce renin. जब इसमें लो प्रेशर फील होगा तो ये सेल क्या होगी, पार्किंसन सेल स्टिमुलेट होगी, और ये क्या स्टिमुलेट करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी यहाँ से, रेनिन। इट मींस यहाँ से ये स्टिमुलेशन होने से इसने क्या रिलीज कर दिया, रेनिन। आर का मतलब याद रखना, रेनिन, दिस इज द फर्स्ट वे जिसके थ्रू क्या होता है, रेनिन प्रोडक्शन होता है। कौन करवाता है, itself, Parkinson cell itself with the help of baroreceptor by sensing a low pressure. Clear? Next, जो हमने फिल्ट्रेट की बात की, जो ब्लड की बात करें, जो ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा, इसका अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा या कम, भाई पीछे से कम आ रहा है तो यहाँ भी कम आएगा। और हमने बोला था जितना अमाउंट आएगा उसमें से 60% ही फिल्टर होता है। प्लाज्मा कितना होता है, 60%, वही फिल्टर होगा, सेल तो फिल्टर होगी नहीं। और 60% में से इसकी एबिलिटी कितनी है, 20%। सो 20% जो भी यहाँ फिल्टर होगा वो भी क्या रहेगा, अमाउंट कम होगा। तो पहले ब्लड ज्यादा था तो ज्यादा फिल्टर होगा, अभी ब्लड कम है तो यहाँ फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पे जो भी अमाउंट पहुंचेगा उसका अमाउंट, फिल्ट्रेशन का अमाउंट क्या रहेगा, लो। सो ये ब्लैक कलर का मतलब अब ब्लड से फिल्टर होकर ये क्या बन गया, फिल्ट्रेट हो गया, और ये फिल्ट्रेट का अमाउंट क्या है, लेस। जब फिल्ट्रेट कम होगा तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर होंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कलर जो भी है, वो सारे भी क्या होंगे, कम फिल्टर होंगे। यस और नो? नाउ दिस लो electrolytes filtrate move forward, and when it proceeding to this macular densa cell, what is the function of macular densa cell, macular densa इसका काम क्या है, with the help of chemoreceptor it assess the level of sodium. So यहाँ पे जो सोडियम होगा उसका अमाउंट क्या मिलेगा इसको, कम। this macular densa cell sense a low sodium in the filtrate, and because of this low sodium this cell again stimulate the Parkinson cell and release of further renin. So this is further release of renin. This is the mechanism number 2. Mechanism number 1 is release of renin from the Parkinson cell with low pressure. Second is release of renin with the help of macular densa cell with low amount of sodium. Clear? Next, third mechanism. Here I will draw a special type of system. This is an very important system. I hope you know about this. ऐसा क्या होता है, कुछ होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर किसमें होती है, वेसल्स में नहीं होती है। सो दिस इज द कैरोटिड सिस्टम। कैरोटिड आर्टरीज होती है, वो वाई शेप यहाँ डिवाइड होती है ऐसे, उधर एक इधर और एक ऊपर। और यहाँ पे स्पेशल टाइप के होते हैं कैरोटिड साइनस। दिस इज द कैरोटिड साइनस, जिसकी आप मसाज करते हैं जब आपको वेगल स्टिमुलेशन करना होता है, जब हार्ट टेकिकार्डिया हो रखा है, वेगल स्टिमुलेशन हम करते हैं। सो दिस इज द कैरोटिड सिस्टम एंड दिस इज एन कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस again having special type of receptor which is known as baroreceptor। तो मैंने बोला था baroreceptor और भी होते हैं, और ये किसमें है, आपके कैरोटिड साइनस में। नाउ बॉडी में जब वॉल्यूम कम हुआ तो हर एक वेसल्स में वॉल्यूम क्या रहेगा, कम। सो कैरोटिड के पास भी क्या पहुंचेगा, कम। तो ये baroreceptor यहाँ पे क्या करेंगे, इनका प्रेशर जो मेजर करेंगे इनको क्या फील होगा, लो या हाई। सो baroreceptor सेंस लो प्रेशर, ये baroreceptor ने क्या किया, सेंस लो, बिकॉज ऑफ दिस और 6 इट्स होगी, कम है। दिस इज नॉन ए ब्लड सप्लाई होगी, जेजी मैक्युलर आर्ट, और इसमें हमको कौन सा रियल
ये पॉसिबल, थोड़ी रेस्ट करने दो उसको, समझ लो। कराता है रेनिन का प्रोडक्शन कराता है, वन बाय वन तीनों की बात करेंगे। यहाँ तक लिख लिया? लिख लिया हो तो अपनी कलम को नीचे रख दो, उसको शांति दे दो, थोड़ी रेस्ट करने दो उसको, समझ लो। रेनिन रिलीज, तो फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? नेफ्रॉन चाहिए होगा, उसके बिना ये बन, एक नजर में नेफ्रॉन बन जाना चाहिए। चलो ये बन गया, और इसमें हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी आपकी एफरेंट आर्टेरियोल्स। Here we have efferent arterioles, and this is an efferent arterioles. Efferent arterioles. These are the specialized cells, which is known as Purkinje 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 macular densa type of cells. Clear? JG apparatus. Now हमने यहाँ पे पढ़ा कि patient is suffering with accident condition है और उससे hypovolemia हो रखा है. So when person is having hypovolemia, now the blood which is reach here, that will reduce or increase. तो यहाँ पे जो blood supply होगी, जो blood इधर आएगा, वो amount क्या रहेगा इधर? जो भी blood यहाँ आएगा इधर, वो क्या रहेगा? Low रहेगा. So due to the hypovolemia, जो ब्लड इस किडनी के पास सप्लाई हो रहा है उसका अमाउंट क्या हो गया? डिक्रीज. व्हेन ब्लड जो यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट है हाइपोवोलेमिया की वजह से, तो इस वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कम होगा? द प्रेशर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन दिस afferent arteriole will be less, and we know that this special type of cell which is known as Purkinje cell, this is known as Purkinje cell, and this Purkinje cell is having which type of receptor? Baroreceptor. So the baroreceptor constantly checking the pressure in this vessel, in afferent arterioles, and when pressure is reduced, कम प्रेशर, इनको क्या फील होगा कि प्रेशर कम है, बीपी कम फील होगा क्योंकि पीछे से ब्लड क्या आ रहा है? कम आ रहा है. When the sense low pressure, or when the Purkinje cell or the baroreceptor sense the low pressure, baroreceptor stimulate the receptor of Purkinje cell which produce renin. जब इसमें लो प्रेशर फील होगा तो ये सेल क्या होगी? Purkinje cell स्टिमुलेट होगी, और ये क्या स्टिमुलेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी यहाँ से रेनिन. इट मींस यहाँ से ये स्टिमुलेशन होने से इसने क्या रिलीज कर दिया? रेनिन. आर का मतलब याद रखना, रेनिन. दिस इज द फर्स्ट वे जिसके थ्रू क्या होता है? रेनिन प्रोडक्शन होता है. कौन करवाता है? itself, Purkinje cell itself, with the help of baroreceptor by sensing a low pressure. Clear? Next, जो हमने फिल्ट्रेट की बात की, जो ब्लड की बात करें, जो ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा, इसका अमाउंट भी क्या होगा? ज्यादा या कम? भाई पीछे से कम आ रहा है तो यहाँ भी कम आएगा. और हमने बोला था जितना अमाउंट आएगा उसमें से 60% ही फिल्टर्ड होता है. प्लाज्मा कितना होता है? 60%. वही फिल्टर होगा. सेल तो फिल्टर होगी, तो फिल्टर होगी, ज्यादा फिल्टर होगा. अभी ब्लड कम है तो यहाँ फिल्ट्रेशन भी क्या होगा? कम होगा. सो यहाँ पे जो भी अमाउंट पहुंचेगा उसका अमाउंट, फिल्ट्रेशन का अमाउंट क्या रहेगा? लो. सो ये ब्लैक कलर का मतलब अब ब्लड से फिल्टर होकर ये क्या बन गया? फिल्ट्रेट हो गया. और ये फिल्ट्रेट का अमाउंट क्या है? लेस. जब फिल्ट्रेट कम होगा तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर होंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कल जो भी है, वो सारे भी क्या होंगे? कम फिल्टर होंगे. यस और नो? नाउ दिस लो electrolytes filtrate move forward, and when it proceeding to this macular densa cell, what is the function of macular densa cell? Macular densa, इसका काम क्या है? With the help of chemoreceptor, it assess the level of sodium. So यहाँ पे जो सोडियम होगा उसका अमाउंट क्या मिलेगा इसको? कम. This macular densa cell sense a low sodium in the filtrate, and because of this low sodium, this cell again stimulate the Purkinje cell and release of further renin. So this is further release of renin. This is the mechanism number 2. Mechanism number 1 is release of renin from the Purkinje cell with low pressure. Second is release of renin with the help of macular densa cell with low amount of sodium. Clear? Next, third mechanism. Here I will draw a special type of system. This is an very important system. I hope you know about this. ऐसा क्या होता है? कुछ होता है? Y-shaped structure किसमें होती है? वेसल्स में नहीं होती है. So this is the carotid system. कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो Y से यहाँ डिवाइड होती है, ऐसे उधर एक इधर और एक ऊपर. और यहाँ पे स्पेशल टाइप के होते हैं कैरोटिड साइनस. दिस इज द कैरोटिड साइनस, जिसकी आप मसाज करते हैं जब आपको वेगल स्टिमुलेशन करना होता है, जब हार्ट टेकिकार्डिया हो रखा है, वेगल स्टिमुलेशन हम करते हैं. सो दिस इज द कैरोटिड सिस्टम एंड दिस इज एन कैरोटिड साइनस. Carotid sinus again having special type of receptor which is known as baroreceptor. तो मैंने बोला था baroreceptor और भी होते हैं, और ये किसमें है? आपके कैरोटिड साइनस में. नाउ बॉडी में जब वॉल्यूम कम हुआ तो हर एक वेसल्स में वॉल्यूम क्या रहेगा? कम. सो कैरोटिड के पास भी क्या पहुंचेगा? कम. तो ये baroreceptor यहाँ पे क्या करेंगे? इनका प्रेशर जो मेजर करेंगे इनको क्या फील होगा? लो या हाई? सो baroreceptor सेंस लो प्रेशर,
ये baroreceptor ने क्या किया, sense low pressure. This baroreceptor which is present in this carotid sinus connected to a nerve. ये nerve कहाँ पहुंचेगी? This nerve will reach to your very important part of body which is known as, बना दे यहाँ पे क्या होता है, ये mid brain, pons, medulla, then spinal cord, cerebellum, ऐसा ही कुछ होता है. So from here neuron will be reached to the brain. brain के अंदर दो टाइप के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं जो मैंने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ाए थे. द टाइप ऑफ न्यूरॉन व्हिच प्रोड्यूसिंग एसिटाइलकोलिन इज नोन एज कोलिनर्जिक न्यूरॉन, एंड द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन व्हिच इज प्रोड्यूस एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज नोन एज एड्रेनर्जिक न्यूरॉन. दो टाइप के न्यूरॉन बताए थे, याद होंगे, एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन. सो दिस इज द नर्व व्हिच कनेक्टेड टू व्हिच टाइप ऑफ न्यूरॉन, कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक. जस्ट थिंक कि कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट करना है. बीपी कम हो रखा तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, अगर कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करेगा और बीपी क्या होगा, कौन होगा. हमें बीपी बढ़ाना है, इट मींस हमें एड्रेनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट करना है, और उसके लिए आपके पास यहाँ पे ये नर्व आएगी, किसके पास आएगी, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के पास. These are the, just ऐसे मैं बना रहा हूँ, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन which is adrenergic neuron, and these neuron produce एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. ये न्यूरॉन क्या प्रोड्यूस करेंगे, एपिनेफ्रिन, एंड इधर बनाते हैं हम इसको. सो ये क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन which is also known as एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, एडीआर एंड नॉरेड. ये दोनों को प्रोड्यूस कराएगा, ब्रेन से प्रोड्यूस हो गया ये, और ये कहाँ पहुंचेगा, आपके सर्कुलेशन में, यहाँ से रिलीज होकर कहाँ पहुंचा ये, इधर ब्लड में. When this epinephrine and norepinephrine reach to the blood, it will bind on the receptor. एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स होंगे. एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ाए थे, याद है, कौन कौन से हार्मोन पढ़ाए थे, अल्फा एडर्नर्जिक एंड बीटा एडर्नर्जिक, याद है, नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे. अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2 बीटा 3. सो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो सारे, पर अभी आप इतना याद रखें कि जो पॉल्किंसन सेल है इसके पास होता है स्पेशल टाइप के एडर्नर्जिक रिसेप्टर, एडीआर रिसेप्टर. सो ये एड्रेनलिन आपका एडीआर एंड नॉरेड का पहुंचेगा इस पॉल्किंसन सेल के पास, और इसको फर्दर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये और क्या प्रोड्यूस करवाएगा, रेनिन. दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म बाय व्हिच रेनिन इज प्रोड्यूस्ड. सो टोटल 3 मैकेनिज्म जिसके थ्रू रेनिन आपका प्रोड्यूस होता है. फर्स्ट मैकेनिज्म, लो प्रेशर सेंस बाय द पॉल्किंसन सेल. सेकंड, लो लेवल ऑफ सोडियम इन द macular denser cell, and third is with the help of carotid sinus, when baroreceptor sense low pressure, they will stimulate the adrenergic neuron in the brain, they will produce ADR and NORAD, and this will bind on the adrenergic receptor which is present in your this Purkinje cell, and they will stimulate and produce this one. और यही तो आपने आगे पढ़ेंगे हम, जब हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं जो आपके बीपी को कम कराएगी, हार्ट रेट को कम कराएगी, तो वो यहाँ के बाइंड हो जाएगी और इसको ब्लॉक कर देगी. जब ये ब्लॉक होगा तो कभी भी रेनिन सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा, और रेनिन स्टिमुलेट नहीं होगा, रेनिन नहीं आएगा तो रास सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा, रास स्टिमुलेट नहीं होगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा. तभी तो हमारी बीपी उससे क्या होती है, ब्लॉकर से कम होती है, वो यहाँ के बाइंड होकर इसको ब्लॉक कर देता है. वो ड्रग में भी पढ़ेंगे. तो तीनों क्लियर हो गए, लिखना है. चलो ये हो गया रेनिन सिस्टम. हाँ क्या, यहाँ पे पहला जो है फर्स्ट मैकेनिज्म जो मैंने नंबर लगाए थे 1 2 3, वैसे आप लगाएंगे. 1 क्या था, रिलीज ऑफ रेनिन बाय पॉल्किंसन सेल, release of renin by Purkinje cell when baroreceptor sense low pressure. This is the first mechanism. ये बनाना है पहले आपको, ये तो बना लिया ना. मैं आपको बताता हूँ, जो एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन एंटीडोट. मॉर्फिन का एंटीडोट सबको आता है, नहीं आता है, मॉर्फिन, हेपरिन, वार्फरिन, ये इनमें से एक हमेशा ही आता है. एक क्वेश्चन आया है एडीएच, एंटी डायबिटिक, सॉरी एडीएचडी, इट्स नॉट एंटी डायबिटिक, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चों में होता है. उसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग देते हैं, वी विल गिव कौन सी ड्रग है, एम्फेटामाइन. सो यहाँ पे मिथाइल एम्फेटामाइन ऑप्शन में था इसमें, आई थिंक. और सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग जो है वो हम देते हैं यहाँ पे. एनेडोनिया क्या होता है, व्हाट इज एनेडोनिया, लेक ऑफ सेंस ऑफ प्लेजर, खुशी नहीं होना. प्रीवियसली ऐसा कोई एक्ट था जिसमें बहुत खुशी होती थी लेकिन अब नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एनेडोनिया. लाइक पहली बार बर्थडे आया बहुत खुश हुआ, दूसरा बर्थडे आया खुशी हो ही नहीं रही है. सो कुछ तो नेचुरल होते होंगे, बट नेचुरली अगर हम बात करें, ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें नॉर्मली हैप्पीनेस होता है लेकिन उस पर्सन को नहीं हो रही खुशी, उसको हम बोलते हैं एनेडोनिया. और क्या था, पेशेंट पता नहीं क्या लिखा है, तो लिथियम, पेशेंट को नोजिया हो रहा है तो लिथियम कब लेना है, बिफोर मील, आफ्टर मील, विथ मील, फुल ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, कब लेते हैं लिथियम. लिथियम शुड बी टेकन आफ्टर मील, बिफोर मील, विथ मील, और
फुल ग्लास टेक विद फुल ग्लास ऑफ वाटर। पेशेंट को यहाँ पे नोजिया की कंप्लेन हो रही है। सो लिथियम जब हम बात करें, कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, इट विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर नोजिया, ज्यादा नोजिया करेगा। सो दिस ड्रग शुड बी टेकन। दो ऑप्शंस यहाँ पे जो आपके आंसर्स में हो सकते हैं, विथ मील और एक आफ्टर मील। अगर दोनों ही ऑप्शंस हैं तो फिर हमारा आंसर होगा आफ्टर मील, जो हम आंसर करेंगे। और क्या है, बिंज ईटिंग, क्लास देखता है उसको लगता है कि मैं तो बहुत मोटा हो गया हूं, और उसके बाद वो खाना खाना बंद कर देता है। पहले खाना खाता है, फिर उसको मिरर देखता है, फिर उसको गिल्ट फील होता है, उसके बाद वो खाना खाना बंद कर देता है। दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। हो गया, अरे ये हो गया, हमें ये पढ़ना है, ये बाद में पढ़ेंगे। तो कॉन्फाबुलेशन, कॉन्फाबुलेशन तो बताइए, फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी विद फॉल्स इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज कॉन्फाबुलेशन। चलिए आगे मूव करें। सो मैकेनिज्म नंबर 1 इज release of renin by Parkinson cell when baroreceptors sense low pressure. Second mechanism, release of renin by Parkinson cell when which receptor? Chemoreceptor at macula densa cell sense low pressure, low sodium, sorry, low sodium, low sodium. Clear? And third one is, इसको मैं ऐसे एरो लगा के लिखता हूं तीसरे वाले को, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। बेरोरिसेप्टर एट, बेरोरिसेप्टर एट कहां पे, द कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस, क्या होगा यहाँ पे, साइंस लो pressure. This low pressure sensed at the baroreceptor stimulate the adrenergic neuron in brain. Stimulated adrenergic neuron क्या रिलीज करेंगे, adrenergic neuron प्रोड्यूस क्या करेंगे, एडीआर और नोरेड, नॉर एड्रेनलिन, और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. दिस एडीआर एंड नोरेड bind on adrenergic receptor at Parkinson cell. This stimulation, this binding lead to stimulation of stimulate Parkinson cell, एंड जब स्टिमुलेट होगी तो क्या रिलीज करेगी, रिलीज रिलीज ऑफ renin. So these are the three pathway or three mechanism through which the renin is produced in your body. तीनों ही क्लियर है, कोई डाउट नहीं, मूव करें आगे, लिख लिया है, नीचे करें, कहां तक लिखा, कैरोटिड साइनस कहां है, बेरोरिसेप्टर एट कैरोटिड साइनस, हाँ लगाओ फिर नीचे, साइंस लोब लिखो आगे, साइंस नहीं लिखोगे, चलो मैं नीचे कर देता हूँ, नहीं नहीं उधर ही लिखना, आ गया साइंस लो प्रेशर। और नीचे करना है, बस हो गया, तीनों पाथवे क्लियर हो गए, घर पे जाके ना तो रटना है ना कुछ करना है, ये स्टिमुलेट होगा और ये क्या रिलीज कराएगा, रेनिन। रेनिन कैसे आएगा वो देख लिया हमने, अब वो रेनिन क्या करेगा वो हम देखेंगे आगे। तो ये हो गया पार्ट ए, हो गया कंप्लीट। पार्ट बी, रेनिन फिजियोलॉजी, अब रेनिन क्या करेगा है, ये लिख लिया, क्या हो गया है, हालत में मूव करें आगे, ये कौन आ गए, गए यहाँ से, कौन है, अभी आने दो इनको वापस,
लिख लिया? नेक्स्ट पार्ट बी, रेनिन फिजियोलॉजी और रेनिन एक्शन क्या करेगा रेनिन यहाँ पे, रेनिन एक्शन और रेनिन फिजियोलॉजी, ओ सॉरी, सो रेनिन की बात करें, रेनिन क्या करता है, रेनिन का छोटा सा काम है, इतना सारा हमने पढ़ा पर रेनिन का एक छोटा सा काम है और कुछ भी नहीं करता है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन हमें चाहिए यहाँ पे वो है हमारे पास लीवर। सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, लीवर। जब हम लीवर की बात करें तो लीवर का मेन जो काम होता है बहुत सारे प्रोटीन बनाता है। लीवर क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन और अदर प्रोटीन जितने भी है सारे। और इन सारे प्रोटीन के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, दिस इज एन प्रोटीन, कौन बनाता है, लीवर। याद रखिएगा, तो सिंपल सा है। और ये कहां प्रेजेंट रहता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, घूमता रहता है, कम होगा तो वापस लीवर बना देगा इसको। सो दिस एंजियोटेंसिनोजन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय लीवर, लीवर फॉर्म एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन का क्या है खेल, इसकी बात करते हैं यहां से। एंजियोटेंसिनोजन बात करते हैं, याद रखिएगा, तो सिंपल सा है। और ये कहां प्रेजेंट रहता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, घूमता रहता है, एंजियोटेंसिनोजन। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंड यहाँ पे जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है रेनिन का। बस रेनिन का यही काम है, क्या करना है, इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है, बाकी और कोई काम नहीं रेनिन का। सो रेनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कहां गए थे भाई, हैं, आज ही आए हो, अरे तुम लोग साइलेंट हो जाओ भाई, हैं कहां गए थे, हैं, जब मैंने बेस स्टार्ट किया था तब एक अनाउंसमेंट किया था, याद है आपको, और वो सिस्टम भी वही पढ़ रहे हैं, किडनी रिनल, याद है आपका, यूरिन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या ये यूरिन बनना जरूरी था, है, जो सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है या बाहर जाना जरूरी था, है, विच वन इज प्रायोरिटी होना चाहिए आपके लिए, तो फिर रिजल्ट डिले होता जाता है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन के नहीं लाता हूँ मैं, कुछ दूंगा 6 महीने बाद। पीपीटी में लिखा हुआ थ्योरी जो है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर मैं कुछ समझा, वाटर इनटेक कर रहे हैं, सो सेम नो वेरी वेल व्हाट इज द साइकोलॉजी। मैं अपना एग्जांपल हर बार देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे भी प्रायोरिटी है कि हमें 6 आवर्स था तो सोच कर रहा हूँ 5 बजे और 30 ml को यूरिन पास में बहुत सारे में, तो ये सारा किसका खेल है, रेनिन सेल, पता नहीं क्या है, रिलीज कराया था वो रेनिन क्या करेगा, नेक्स्ट आ जाओ इधर आ जाओ, एंजियोटेंसिनोजन कौन प्रोड्यूस करेगा, लीवर। सिक्रेटेड जो रेनिन हमने सिक्रेशन कराया था, रिलीज कराया था, वो रेनिन क्या करेगा, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। नाउ दिस एंजियोटेंसिन फर्स्ट विल मूव थ्रू द ब्लड, ब्लड में मिक्स होगा और ये ब्लड में मूव करेगा एंड व्हेन इट रीच टू द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन व्हिच इज नोन एज लंग्स। जब ये किसके पास पहुंचेगा, लंग्स के पास पहुंचेगा, तो इन आवर लंग्स in the blood vessels there is a special type of enzyme which is waiting for this angiotensin first, not for angiotensin। ये तो बार बार जाता है, इसका वेट नहीं कर रहा हो, किसका वेट कर रहा होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का वेट कर रहा होता है कि ये कब आएगा, ये आएगा तब मेरा कुछ काम होगा। एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज ACE enzyme, not inhibitor। ACE means angiotensin converting enzyme, angiotensin converting enzyme, फुल फॉर्म याद रखेंगे, angiotensin converting enzyme, दिस इज AC एंजाइम। ये कहां प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा लंग्स में। देयर आर टू स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दिस AC एंजाइम, जो आप जब AC इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं तब बहुत हेल्प करते हैं और एग्जाम में एज ए साइड इफेक्ट आपको जो पूछते हैं तो उसका आंसर देने में बहुत बेनिफिट होता है। पहला जो इसका मेन फंक्शन है वो है इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। जो फर्स्ट है उसको किसमें कन्वर्ट करना, सेकंड में कन्वर्ट करना, दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ दिस AC एंजाइम। द नेक्स्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट हम उसको बहुत बार मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं, नहीं पता होता है हमें। द फंक्शन ऑफ दिस AC एंजाइम सेकंड फंक्शन दैट इज इट्स a block of bradykinin। ब्रेडिकाइनिन जानते हो, ब्रेडिकाइनिन इट्स पोटेंट वेसोडायलेटर और वेसोकंस्ट्रिक्टर। इट्स अ पोटेंट वेसोडायलेटर, वेसल्स को डायलेट कराता है। सो एसी एंजाइम का दूसरा फंक्शन है कि ये वेसोडायलेशन जो करने वाला एंजाइम है या सब्सटेंस है ब्रेडिकाइनिन। मैं इसके बारे में इधर लिखता हूं, इसमें नहीं लिखूंगा। ब्रेडिकाइनिन क्या है, ब्रेडिकाइनिन इट्स ए पोटेंट वेसोडायलेटर। सो मैंने जब पेशेंट को
एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना के आगे भेजा तो लंग्स के अंदर जो एसी एंजाइम है इसने पहला काम तो क्या किया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा इस एसी एंजाइम ने इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, ब्रेडिकाइनिन को ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्रेडिकाइनिन ब्लॉक हो जाएगा तो जो वेसोडाइलेशन होता है वो भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक, और अब वेसल्स क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। सो बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ ब्रेडिकाइनिन नाउ पर्सन विल हैव वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और भाई हमें यही तो करना है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उससे बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो दिस विल हेल्प इन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, बीपी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द वन फंक्शन ऑफ एसीई एंजाइम। देन द नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन सेकंड, जो हमारे एंड प्रोडक्ट बना वो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें जो चाहिए था वो यहाँ पे बन गया, एंड दिस इज हैविंग थ्री मेन फंक्शन और थ्री मेन एक्शन। फर्स्ट वन, एंजियोटेंसिन सेकंड इज अगेन इट्स एन पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। पहला वाला जो था ये वाला ब्रेडिकाइनिन वो तो वैसो डायलेटर था, ये क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड थिंग, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। थर्ड थिंग, रिलीज ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो ये तीन फंक्शन करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड विल परफॉर्म थ्री फंक्शन, वन इज इट्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। सेकंड थिंग, इट्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिलीज कराएगा, और उसके बाद में थर्ड फंक्शन रिलीज ऑफ एडीएच। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कैसे ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी को बढ़ाएगा, देन इसका एक्शन क्या है और इसका एक्शन क्या है, वन बाय वन तीनों को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। लिख लिया तक? हो गया? इधर से करना है, ये वाला लिख लिया था, ऊपर क्या लिखा, ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है ना। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंजियोटेंसिन जो लीवर प्रोड्यूस करता है वो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में, रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसी एंजाइम इट कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड इज इंपॉर्टेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इट्स a release of aldosterone, help in the release of aldosterone, and also release in the ADH, antidiuretic hormone. यहाँ तक लिख लिया, उधर इधर करें। So this then first, then angiotensin first in the lungs converted into the AC presence of AC enzyme in the second, and second is important vasoconstrictor as well as release of aldosterone and release of ADH. This is an additional function जो normally आप लोग नहीं पढ़ते हैं। एडिशनल फंक्शन जब हम एसी इनहिबिटर्स देंगे तो एसी इनहिबिटर क्या करेगा, एसीई एंजाइम को इनहिबिट करेगा, एंड जब एसीई एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा, और उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। सो ये तो फर्स्ट होता है, लेकिन एसी एंजाइम ब्लॉक होने से जो ब्रेडिकाइनिन है, पोटेंट वैसोडाइलेटर है, यहाँ पे एसी एंजाइम इसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, लेकिन जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो इसको ब्लॉक ये नहीं करेगा, तो ब्रेडिकाइनिन क्या होगा, और स्टिमुलेट होगा, और ब्रेडिकाइनिन और स्टिमुलेट होने से क्या होगा, वैसोडाइलेशन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में क्या कराता है, इट्स क्या कराता है, इट्स एन एलर्जिक मीडिएटर। एलर्जिक सिचुएशंस आपकी कोज, आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, बॉडी में इचिंग आपको देखने को मिलेगा, पूरा फेस फ्लशिंग फेस हो जाएगा। तो एज ए साइड इफेक्ट वहां पे हम पढ़ते हैं, जब एसी इनहिबिटर आप पढ़ोगे तब वहां पे आएंगे, याद रहेगा। लिख लिया, ये हो गया। सो पहला लिखिए आप, पोटेंट वेसोडाइलेटर कैसे है और ये क्या करता है इसमें, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, सॉरी, फर्स्ट पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ट्यूसडे के टेस्ट में रीनल सिस्टम के एमसीक्यू जाएंगे, सिस्टम हमने पढ़ा है, और उसके बाद फर्स्ट इज पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन है, ये यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड, जिसकी हम बात करने वाले हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड। सो एंजियोटेंसिन सेकंड कॉज पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, सो यहाँ पे मैं एक तरफ बनाता हूँ हमारा ब्यूटीफुल सा, इट इज एन venous system, blue color आपका venous system, and in one side we have the arterial system, here we have the arterial system, and here we have a beautiful heart, हाँ जो भी है चार चैम्बर। the blood will be from a vein drain into the right atrium, this is the right ventricle, left atrium, and then left ventricle, through this right atrium then into the right ventricle, then right ventricle to the lungs, lungs to the right atrium, and then right atrium to the left ventricle, and then left ventricle to the सर्कुलेटरी, जो आपका सिस्टम ब्लड यहाँ से आपके सर्कुलेशन में मूव कर जाएगा, यही होता है। देन यहाँ से आर्टरी से आपका जाएगा, इधर आएंगे हम तो यहाँ पे आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स होंगे आपके। सो हियर वी हैव द, दीज आर द आर्टेरियोल्स, ठीक है आपके आर्टेरियोल्स, एंड इन दिस साइड वी हैव द वेन्यूल्स, इधर क्या है आपके ये वेन्यूल्स। इन बिटवीन दीज आर्टेरियोल एंड वेन्यूल्स वी हैव द, क्या होता है, कैपिलरीज।
जहां पे एक्सचेंज होगा कैपिलरीज। क्लियर? सो ये बन गया एक सिस्टम, यहां से आएगा, इधर आएगा, यहां से होके इधर जाएगा और ऐसे कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं पेशेंट में क्या हो रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, कौन करा रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड। पहला कॉन्सेप्ट जब हम बॉडी में बात करते हैं, सो अगर हम ब्लड की बात करें तो नियर बाई 70% ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेन और आर्टरी, प्रेजेंट इन आवर वेन। 70% ब्लड जो होता है टोटल बॉडी का वो किसमें होता है, वेन में होता है, 30% जो होता है वो आर्टरीज में होता है। नाउ जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये जो वेन्स है सारी क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। सो लाइक ये क्या हो गया, दिस वुड बी द ब्लू कलर, इसमें हो गया वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से यहाँ पे जो ब्लड है, वेन में सारा ब्लड भरा हुआ है, नेरो हो गया, ये भी नेरो हो जाएगी और सारा ब्लड किधर मूव करेगा, टुवर्ड द राइट एट्रियम। और जब राइट एट्रियम में पहुंचेगा तो इट मींस इसकी वजह से क्या होगा, आपका वीनस रिटर्न। जब ज्यादा ब्लड आएगा तो वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वीनस रिटर्न आपका क्या हो गया, इंक्रीज। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो इसमें ब्लड भी ज्यादा आएगा, यहाँ से लंग्स में भी ज्यादा जाएगा, लंग्स में ज्यादा आएगा तो यहाँ भी ज्यादा आएगा, और यहाँ आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होगा, ब्लड ज्यादा हो। एंड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा होगा तो यहाँ से ब्लड पहुंचेगा इस वेसल्स में, इधर आएगा ब्लड, और जब ये बाहर आएगा तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। नाउ अगर हम बीपी की बात करें, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, इट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज सिस्टोलिक बीपी, अरे वैल्यू नहीं बतानी है, व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या होता है ये। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस, पहला पॉइंट की है जब हार्ट जो है अपनी सिस्टोल फेज में होता है, डायस्टोल फेज में होता है, रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, a huge amount of blood will be pushed into the arterial system, जिसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, and the amount of the blood which is pushed out from the left ventricle will exert the pressure on the wall of this artery during contraction of the heart। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे बहुत सारा ब्लड बाहर आएगा और वो ब्लड किस पे प्रेशर डालेगा, आर्टेरियल की वॉल पे, आर्टरी की वॉल पे। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब मैंने बोला कि यहाँ वेनस रिटर्न ज्यादा हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा, और कार्डियक आउटपुट ज्यादा तो यहाँ से जो ब्लड आउट होगा वो अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो वॉल के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और उससे कौन सा बीपी बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। सो पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा, व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, the pressure which is exerted on the wall of vessel or arteries during relaxation or diastolic phase of the cardiac cycle। हार्ट जब डायस्टोल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जब ये वापस रिलैक्स होगा तब इसके अंदर प्रेशर रहेगा, वो क्या रहेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब क्या होगा, जब ये ब्लड एक बार इधर पुश कर दिया गया, पुश होने के बाद में यहाँ पे तो वॉल होता है, क्या होता है, वॉल होता है, कौन सा वॉल, कौन सा, एरोटिक। ये वॉल बंद हो जाएगा जब एक बार आपका सिस्टोलिक फेज कंप्लीट, तो ये वॉल क्या हो गया, बंद। इधर अगर हम बात करें तो हमने बोला था बॉडी में क्या हो रखा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करवा रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये इधर वाली जो वेन्यूल्स है ऑलरेडी क्या है, नेरो, और ये भी क्या हो जाएंगे, नेरो। जब ये सारे पार्ट नेरो रहेंगे तो यहाँ से जो ब्लड इधर मूव करेगा वो क्या करेगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट इधर जाएगा। इट मींस आप देखोगे तो ये भी बंद है और इधर भी लगभग बंद है, तो ये जो सिस्टम है पूरी एक क्लोज चेंबर की तरह हो गया। और जो भी हाई अमाउंट ब्लड यहाँ पे आया था सिस्टोलिक फेज में, वो इधर ही प्रेजेंट रहेगा, और डायस्टोलिक में भी अमाउंट क्या रहेगा आपका, ज्यादा, और उसकी वजह से जो डायस्टोलिक बीपी आएगी वो भी क्या रहेगी, ज्यादा। तो ड्यू टू दिस formation of closed chamber or vasoconstriction, the diastolic blood pressure will also increase. So this is the first mechanism how angiotensin second will cause vasoconstriction and increase the blood pressure. Clear? Yes. Next, second पे चले, दूसरा क्या था, release of aldosterone, release of aldosterone। Next is the release of aldosterone. How the aldosterone is released and what is the function of aldosterone? So aldosterone is produced by kidney, liver, lungs। कौन प्रोड्यूस करता है, कौन कौन करता है, किडनी, लंग्स, लिवर। aldosterone is produced by adrenal gland, not kidney। वो करे। सो देखो कैसे रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन का खेल, क्या खेल खेलता है ये। सेकंड इज रिलीज ऑफ aldosterone। Now we are discussing about a very important substance which is important to vasoconstrictor हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट जो है आपका एंजियोटेंसिन सेकंड, इसका वर्क पढ़ रहे हैं हम, एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड ये किसमें, ब्लड में मिक्स हो गया। नाउ थ्रू द ब्लड इट विल रीच टू द
ग्लैंड विच इज नोन एज एड, किसमें ऐड करना है, रीनल में, ये क्या बन गया, एड्रिनल ग्लैंड। ये होता है किडनी, ऐसे ही होता है, किडनी के ऊपर ऐड कर दो ये ग्लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, यही है इसका कॉन्सेप्ट। सो एड्रिनल ग्लैंड, इस ग्लैंड के अंदर जाएगा, ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट और एक होता है मेडुला पार्ट। सो ये कहां पहुंचेगा, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में कौन सा पार्ट, so there is a specific part in gland that is known as zona glomerulosa. The area is known as zona glomerulosa. So this angiotensin second reach into the adrenal gland and move into the area which is known as zona glomerulosa and stimulate it. इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये एरिया का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो इसको क्या करेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट करेगा। When this area is stimulated, release of, कौन रिलीज हो गया, एल्डोस्टेरोन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया कि एल्डोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है, तो आंसर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। कौन करवाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड, कौन से एरिया से, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, याद रहेगा। अब ये एल्डोस्टेरोन आ गया ब्लड में, ये किस में आ गया, सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड में आ गया, नाउ इट इज इन द प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड से ये मूव होके कहां पहुंचेगा, दिस एल्डोस्टेरोन विल रीच टू द किडनी, एल्डोस्टेरोन आ गया आपके किडनी में, और किडनी के अंदर हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, it will move to a cell which is known as P cell or principal cell. This aldosterone in kidney stimulate the P cell or principal cell. When this P cell or principal cell is stimulated, the function of this P cell or principal cell is reabsorption of sodium and excretion of potassium. ये क्या करेगा, ओके मैं आई थिंक मेरे पास बना हुआ है नेफ्रॉन पर, उस पर एक बार बताता हूँ, फिर हम देखते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। सो हियर वी हैव द नेफ्रॉन, कहाँ गया, अरे नीचे जा भाई, हाँ दिस इज द नेफ्रॉन। अब नहीं रुकेगा। सो दिस इज द नेफ्रॉन जो हमने रास सिस्टम में बनाया था यहाँ पे, हियर द नेफ्रॉन। At this part, here we have the specialized cell which is known as P cell or principal cell. So ये principal cell क्या करती है, यहाँ से 2 सोडियम को क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब करेगी, उसके बदले में 3 पोटेशियम क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। वी नो दैट पोटेशियम इज हाईली प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो इसको अंदर डाल देगी और वो आपको यूरिन में मिलेगा पोटेशियम। सो ये रीअब्सॉर्प्शन होता है। व्हेन द सोडियम इज रीअब्सॉर्ब हियर, ये तो क्लियर हो गया, प्रिंसिपल सेल क्या करती है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करती है और उसके बदले में क्या देती है, सोडियम बाहर, पोटेशियम बाहर निकाल देगी। व्हेन द सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड, यहाँ पे वाटर भी है और उसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम की बात करें तो सोडियम इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, इट्स हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लव। सो सोडियम इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑलवेज लव टू वाटर, इट इज लाइक अ स्पंज। स्पंज देखा है, स्पंज होता है सीट पे लगा था, गाड़ी की सीट पे स्पंज होता है, आप एक स्पंज को लेके पानी में डालो और बाहर निकालो, पानी कहां जाएगा, स्पंज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इट इज लाइक द सेम सोडियम, व्हेन यू पुट द सोडियम इन वाटर इट विल एब्जॉर्ब द वाटर। सो जब ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो इसके साथ में क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर, यस। और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपका बीपी क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ एल्डोस्टेरोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। क्लियर, चलिए आगे देखो, अब ये वापस बहुत डिफिकल्ट। सो यहां तक हो गया था ये, अरे आज तो बहुत सारा लिख दिया मैंने, थक गया मैं तो। सो यहाँ पे क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, दिस पोटेशियम, सॉरी। सो सोडियम क्या है, सोडियम इज ए हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, हाइड्रोफिलिक आयन, और ये अपने साथ में क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब द वाटर, साथ में क्या अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब द वाटर, और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज वॉल्यूम, एंड इंक्रीज वॉल्यूम लीड टू इंक्रीज बीपी। So this is the whole physiology about this aldosterone. लिखो लास्ट, release of ADH, anti diuretic hormone.
नीचे करना है। और तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, पर दिखेगा नहीं फिर। दिख रहा है? एक में तो यही आएगा, ऐसे ही आएगा फिर सिंगल स्क्रीन में। ये पता नहीं परेशान कर रहा है। लिख लिया? सोना ग्लोमेरुलस स्टिमुलेट, उससे रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन रिलीज होने से क्या होगा? एल्डोस्टेरोन इन ब्लड रीच टू द किडनी, एंड किडनी में किसको स्टिमुलेट करेगा? पी सेल या प्रिंसिपल सेल को, एंड प्रिंसिपल सेल स्टिमुलेट होकर क्या कराएगी? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगी, एंड सोडियम इज अ हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, सो इट आल्सो रीअब्सॉर्ब द वाटर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम एंड लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। सो दिस इज द सेकंड पाथवे जो हम पढ़ा। नेक्स्ट थर्ड, और तीसरा जो है हमारे पास वो है आपका, अरे नीचे करना है, लिखा नहीं। थर्ड लिखूं एडीएच, एरो सही लगाना, ऐसे किधर भी लगा मत देना। और ये कितना, ये मैं तो लास्ट तक रखा है ना बस। लास्ट एडीएच जो है वो आपको घर से पढ़ के आना है। एडीएच किससे रिलीज होता है? कहां से रिलीज होता है एडीएच? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप के स्पेशल हार्मोन्स बनते हैं। वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वन इज एडीएच। सुना होगा आप लोगों ने पहले कभी। तो उसी एडीएच की बात हम यहाँ पे करेंगे। लिख ले, हटा दे। एक हार्मोन, नाम में ही लिखा हुआ है, इट्स एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी डायूरेटिक को ब्लॉक करने वाला डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच, इट इज बड़ी आस्क यू अबाउट द वैसोप्रेसिन। सुने? व्हाट इज वैसोप्रेसिन? वैसोप्रेसिन क्या होता है? एडीएच होता है। सो वैसोप्रेसिन इज ए सिंथेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन क्या है? इट्स अ सिंथेटिक हार्मोन। जब हम डॉक्टर बोलता है एडीएच लगाओ, तो हम क्या लगा देते हैं? वैसोप्रेसिन लगा देते हैं। इट्स अ सिंथेटिक हार्मोन। नेचुरल तो एडीएच है, सिंथेटिक क्या है आपका? वैसोप्रेसिन। एडीएच प्रोडक्शन एंड एडीएच सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन और रिलीज जो है उसकी अगर हम बात करें तो दो ऑर्गन याद रखना है। एक आपको याद रखना पड़ेगा हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का पार्ट, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस के अंदर एरिया की बात करें तो दो एरिया आपको यहाँ पे याद रखना है। वन इज सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है उसके जस्ट ऊपर, ऑप्टिक काइज्म के पीछे। एंड सेकंड वन इज पेरा वेंट्रिकुलर, पेरा वेंट्रिकुलर, पेरा वेंट्रिकुलर। सो सुप्रा ऑप्टिक की अगर हम बात करें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ADH, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग हार्मोन, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। सो अभी हम बात इसकी नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे एडीएच की। तो एडीएच कहां से बनता है ये तो क्लियर है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस बनाता है। कौन सा पार्ट? सुप्रा ऑप्टिक एरिया है, जस्ट ऑप्टिक यानी ऑप्टिक ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं, ऑप्टिक आइज के पीछे ट्रैक्ट के ऊपर एरिया होता है जो नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे आपको, वहां से एडीएच बनता है। आफ्टर सिंथेसिस, आफ्टर द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ दिस एडीएच, इट विल बी स्टोर इन योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एडीएच कहां स्टोर हो जाता है? स्टोर इन पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इसके अंदर भी दो लोब होती है। दो लोब होती है ऐसे कुछ, इट इज वेरी बैड पिट्यूटरी बनाए तो। सो कुछ ऐसा पिट्यूटरी कुछ होता है, एक तरफ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी तरफ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड पोस्टीरियर इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिस हार्मोन इज stored, ADH और ऑक्सीटोसिन कहां पे स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नाउ फ्रॉम दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिस ADH इज प्रोड्यूस्ड। ADH कब रिलीज होगा यहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सॉरी, ADH कौन रिलीज करेगा? तो आंसर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब हम बात करते हैं इसमें रिलीज ऑफ ADH की। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पे, हम कौन सा मॉलिक्यूल की बात करें, सब्सटेंस की बात करें? एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन सेकंड। This angiotensin second are raised to which gland? Master gland body known as pituitary gland, and stimulate them to produce which substance? ADH. So this gland will stimulate the ADH. ADH यहाँ से किसमें आएगा? ब्लड में आएगा, and it reaches to which organ? Again kidney. Which part of kidney? So kidney में कहा जाएगा? नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में, टर्मिनल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन किडनी में गया। कहाँ पे? कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो आपकी एपिथेलियल सेल है उनको स्टिमुलेट करेगा, और वहां पे क्या करेगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो मैं ऑलरेडी लिखवा दिया आपको, एडीएच के रिसेप्टर ऑलरेडी बता दिया। सो दिस इज द रिलीज ऑफ योर एडीएच एंड फंक्शन इसका। तो इसका तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, एंजियोटेंसिन डायरेक्ट जाके क्या कराएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज कराएगा? एडीएच।
देख लिया? मूव करें? अरे यहां तक हो गया? का यूरिन फॉर्मेशन, आई थिंक पहले भी पढ़ा होगा आपने। यूरिन फॉर्मेशन जानते हो? सो बिफोर मूविंग ऑन द यूरिन फॉर्मेशन देयर आर फ्यू पॉइंट्स, अगर आप लिख दिया तो उसी के अंदर लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। क्लास सिस्टम हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले इन यूरिन फॉर्मेशन कुछ पॉइंट्स जो आपको समझने हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, किडनी किडनी डज नॉट शो साइन ऑफ renal dysfunction till 25% और लेस नेफ्रॉन आर डैमेज्ड। नेफ्रॉन की एबिलिटी जो हम बात करें तो बहुत होती है, और हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने पहले पढ़ाया भी था आपको कि मिनिमम यूरिन आउटपुट हमें कितना चाहिए पर डे। Minimum is 500 ml you required. And if in your body the 25% or less than 25% nephron is damaged, still the remaining nephron 75% जो बचे हुए हैं, they are able to form 500 ml urine in a day. And your metabolic waste will be excrete out normally. So there will be no kidney dysfunction symptom till 25% or less nephron damage. तो अगर बॉडी में 25% या इससे कम नेफ्रॉन डैमेज है तो आपको किसी तरह का कोई भी रीनल डिस्फंक्शन के सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये 25 से ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, देन यू विल हैव रीनल डिस्फंक्शन सिम्टम, जिसमें सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है क्रेटिनिन, जो हम पढ़ते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं। क्रेटिनिन इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर रीनल फंक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल किडनी may perform 80% work of both kidney. So ये काम की पॉइंट है, काम का चीज है। If a person is having only a single kidney, still he or she and still he उसकी जो किडनी है वो अभी भी 80% वर्क कर सकती है दोनों किडनी का। And that's why renal transplantation is very common now. कि आपकी एक किडनी निकाल भी दी, पहले अगर आप 100 ml यूनिट बना रहे थे तो अभी भी आपकी एक किडनी कितना बना देगी? 80 ml बना देगी, और 80 ml बहुत है, 20 ml कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए किडनी डोनेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किडनी डोनेट के लिए कोई बोले तो तुरंत क्या कर देनी है? किडनी डोनेट कर देनी है, ये लो, कोई इश्यू नहीं है। 80% आपका ये किडनी क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तीसरा आता है renal transplant. renal transplant कब करना पड़ेगा? तो if a person is having damage nephron is 80% or more, जब नेफ्रॉन का डैमेज 80% से ज्यादा हो गया, इट मींस अब आपके नेफ्रॉन वापस रिवाइव इतने नहीं हो सकते कि आपका बेसिक नीड जो है 500 ml पर डे यूरिन वो भी बना पाए। तो आपको अब उस कंडीशन में जाके क्या करवाना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांट और रेनल ट्रांसप्लांट इज ओनली द वन मैनेजमेंट, अदरवाइज डेली बेसिस पे क्या करो? डायलिसिस। सो दीज आर 3 पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या इसकी फिजियोलॉजी है उसको देखते हैं, समझते हैं। लिख लिया? जब भी हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 3 मैकेनिज्म जो है वो समझना है। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, second one is tubular reabsorption, and third one is tubular secretion. And after this whatever amount is present in your bladder or through the ureter, जो भी आएगा वो सारा क्या होगा? आपका यूरिन होगा। तो क्या होता है इसमें देखें। सो मैं यहाँ पे एक सीधा कर दिया, ऐसे जो नेफ्रॉन था उसको लंबा करके बनाते हैं और उसको समझते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द वोमेन्स कप एंड दिस इज द ट्यूबिल्स। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? और ये एंड पार्ट इसका, नेफ्रॉन को सीधा कर दिया हमने। इधर से हम एफरेंट आर्टरीज बना देते हैं, ये आपका एफरेंट आर्टीरियल्स इधर आएगा, और यहाँ पे आपका बंच ऑफ कैपिलरीज, एंड देन ये वापस जाए, ये है एफरेंट आर्टीरियल्स, और इधर से क्या है आपका? ये दिस इज द एफरेंट आर्टीरियल्स। क्लियर? एफरेंट आर्टीरियल्स, efferent arterioles, this is the renal tubules, this is Bowman cup, this is the glomerulus, and this is the renal corpus callosum. ब्लड जो है यहाँ से मूव करेगा एंड यहाँ पे आएगा, और यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? आपका फिल्ट्रेशन। एंड पूरा फिल्ट्रेशन का अमाउंट मैंने पहले भी निकाल के आपको बताया था, याद होगा आई थिंक, याद है? टोटल आउटपुट जो है वो कितना है? कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर। आउट ऑफ दिस 5 लीटर किडनी रिसीविंग 20 to 25%, जो आई थिंक आपको पता होगा बहुत ही अच्छे से। आउट ऑफ दिस 20 to 25%, लाइक अगर हम 5 लीटर की बात करें, 20% की बात करें, तो यहाँ कितना आएगा? नियर बाई 1 लीटर। किडनी के पास पर मिनट कितना ब्लड आएगा? 1 लीटर। दिस 1 लीटर ब्लड हैविंग 2 पार्ट्स, वन इज प्लाज्मा एंड वन इज सेल्स। फिल्ट्रेशन के लिए कौन अवेलेबल होगा? प्लाज्मा। सेल तो फिल्टर होगी नहीं,
हमने बता दिया पोरेन साइज बहुत नैरो होती है और वहां से सेल फिल्टर नहीं होती। नंबर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो दिस इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 60% एंड दिस इज हैविंग 40%। सो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है वो कितना है? 60% आउट ऑफ जो भी आएगा उसमें से 60% या फिल्टर होगा। कितना आया हमारे पास? 1 लीटर, यानी 1 लीटर का 60% करें तो अप्रोक्सीमेटली 600 ml is available for filtration and 400 ml is not available for filtration. So this 400 ml will be transported here. ये 400 ml तो कहाँ जाएगा? efferent arteriole में आ जाएगा। एंड रिमेनिंग जो आपका 600 ml है वो किसके लिए अवेलेबल है हमारे पास? फिल्ट्रेशन के लिए। सो यू हैव 600 ml हियर व्हिच इज अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन। आउट ऑफ दिस 600 ml एबिलिटी ऑफ दिस किडनी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज टू फिल्टर ओनली 20%। जो भी आएगा उसमें से कितना ये फिल्टर करेंगे? 20% को। 600 का 20% नियर बाई 120 ml। सो इसको हम एवरेज अगर हम बात करें तो लिखते हैं 125 ml पर मिनट। दिस इज नोन एज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। याद हो गया? पहले भी बता दिया था। Now this 120 ml जो यहाँ से फिल्टर होगा, this is known as glomerular filtration, जो फर्स्ट प्रोसेस होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख रहा हूँ इसमें, this is number 1, it is an glomerular filtration. Out of this 120 ml, this filtrate will move forward and nearby how much percentage? Not 65, मैं पूरे पे बना रहा हूँ, मतलब 99%, 99% will be reabsorbed by this renal tubules and only 1% will be excreted as urine. यही होता है। सो जो भी फिल्ट्रेट आया उसमें से ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो गया इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, लाइक इन दिस 400 ml यहाँ पे टॉक्सिन्स भी होंगे, ड्रग्स भी होगी जिनके साइज बड़ी होगी, वो भी यहाँ फिल्टर नहीं होंगे और वो हमें बॉडी में वापस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन लार्ज साइज के मॉलिक्यूल को यहाँ से, ये जो आपकी रेनल ट्यूबुल्स है, एक्टिवली यहाँ पे इस एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू इस ट्यूबुल के अंदर क्या कर दी जाएगी? सिक्रेट कर दी जाएगी। ट्यूबुल के अंदर क्या करेगी? एक्टिवली सिक्रेट करेगी। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो तीन प्रोसेस होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रिएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन, जो लार्ज टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है उनको वापस सिक्रेट करना। तीनों की अगर हम बात करें यहाँ पे, लाइक यूरिन क्या है यहाँ पे? यूरिन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर दिस इज फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसको सोल्व करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? आपका यूरिन। जैसे हमने बोला कि 120 ml जो है वो क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, तो 120 ml माइनस इसमें से 99% आपने क्या किया? रीअब्सॉर्ब कर दिया। तो इसका 99% मान लो 110, जस्ट फॉर एग्जांपल 110 है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं 110, तो माइनस 110 प्लस आपने जो सीक्रेट किया इसमें 10 ml सीक्रेट कर दिया, तो ये 10 ml लिख दिया यहाँ पे प्लस 10 ml। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, तो 120 माइनस 110 इज 10 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा? 20 ml। तो आप क्या बोलेंगे कि पर्सन का यूरिन आउटपुट कितना है? यूरिन जो बना है वो बना है 20 ml। टोटल यूरिन जो बना है वो कितना है? 20। इट इज एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल दिया मैंने। सो ये पूरा प्रोसेस किसमें आता है? आपका यूरिन फॉर्मेशन, जहां पे तीनों हम पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशंस। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है? क्या क्या यहाँ पे मैकेनिज्म होते हैं, कितने प्रेशर सप्लाई होते हैं, उनको कैसे ऑब्जॉर्प्शन कराते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन है उन्हें किसका ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन सी सेल करती है, क्या मैकेनिज्म होता है, और सिक्रेशंस कैसे होता है, विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू।